friends, a very warm welcome to you all on behalf of Project Hope and IDA Delhi chapter, and we are gathered here on the occasion of Dietetics Day. Now, today, our theme for today is a healthy foundation for a healthy tomorrow. So, it itself says everything about what we are going to discuss right now today. Right? So, when we talk about healthy foundation, healthy tomorrow, what does come in your mind with this? I believe lifestyle disorders is a big challenge, and we need to deal with that, especially in India. It's a big health challenge. How do we deal with all that? With some modifications, say dietary, lifestyle modifications, we can deal with all that. What are these modifications? I don't need to discuss right now because most of us are from dietetics background here. But what we need to put light on is the statistics. For example, in India, there are almost 65 million people who are dealing with diabetes today. And the pity is there are only 400 endocrinologists to take care of those 65 million people. Do you think it is practically feasible to cover this number with just 400 endocrinologists? The answer is simply no. It's not possible. But we around 1 lakh dietitians in India, if we put hands together, we can make a difference. But how? We need to empower ourselves on specializing in the field of self-management and prevention of these disorders. International Diabetes Education e-learning program in India gives us an opportunity to do so. It gives us an opportunity to train people on self-management of diabetes and metabolic syndrome. So it gives us an opportunity to actually gift a healthy future to a lot of people around us in need. It will not just only broaden your horizons personally but also professionally. Now, without taking much of your time, I would like to introduce to you our Mehak group, who on behalf of Project Hope and IDA Delhi chapter will be presenting an interesting street play to you all, which will further enlighten you on the lifestyle modifications and of course a little bit on IT. So over to the Mehak group, and thanks for being patient with me. Have a nice day. सारा दिन काम करके ऑफिस में इतनी थकान हो जाती है कि मैं क्या बताऊं आपको। भाई चलो घर आकर तो थोड़ा सुकून मिलता है। अब ये मेरी पत्नी और मेरा नौकर कहाँ है? अरे भाई रामू, रामू! अरे यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे। हाँ मालिक बोलिए। अरे सारा दिन घर में नाचता रहता है, कुछ काम काज भी करता है या नहीं? मालिक सारे दिन काम ही तो करते हैं। ये अंगड़ाइयाँ तोड़ना बंद कर और जा जरा एक कप बढ़िया सी चाय बना कर ला, और सुन मीठा जरा तेज रखियो और गर्मा गर्म चटपटों से पकोड़े बना कर ला जा। गर्मा गर्म पकोड़े? हाँ, और एक कप चाय। एक कप चाय? चाय तो बन ही नहीं सकती मालिक। चाय नहीं बन सकती? हाँ। क्यों भाई, चाय क्यों नहीं बन सकती? मालिक जब आप ऑफिस जाने से पहले जो 4 कप चाय पी के गए थे ना, उसी टाइम सारा दूध खत्म हो गया था। 1 किलो दूध तूने 4 कप चाय में खत्म कर दिया। मैंने क्या खत्म करा, पिया तो आपने था। अच्छा ठीक है, अब क्या मेरी चाय भी गिनेगा? कोई बात नहीं, जाकर बाहर से दूध खरीद ला और पकोड़े बना फटाफट जा। गर्मा गर्म पकोड़े? अरे हाँ भाई, गर्मा गर्म पकोड़े, कई दिन हो गए पकोड़े नहीं खाए। अच्छा अभी खिलवाते हैं पकोड़े। हाँ जा। मैम साहब आई। आपको क्यों बुला रहा है? भूल गया वो डाइटिशियन है यार, फिर शुरू हो जाएगी। नहीं होगी, मैं हूँ ना। आ गए आप? हाँ भाई आ गया वो। जी कुछ कह रहे थे आप? अरे क्या रहा था, वो जरा भूख लग रही थी तो रामू को कह रहा था कि कुछ खाने पीने के लिए बना दे। हाँ, और कह रहे थे गर्मा गर्म पकोड़े मंगा दे, वो बना दे। मतलब गर्मा गर्म पकोड़े? हाँ, अगर चटनी के साथ हो जाए तो थोड़ा। हाँ, और चाय भी बोला होगा आपने तो। अब वो तो है ही, पकोड़े सूखे कौन खाता है, चाय तो जरूरी है। और वो भी बहुत मीठी चाय। अरे भाई, जब तक चाय में चीनी ना हो पीने का मजा क्या। वाह भाई वाह।
क्या बात है? भाई क्या हो गया? आजकल आप अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। जब देखो ऑयली ऑयली खाना हमेशा खाते रहते हो। अरे सेहत तभी तो बनेगी जब ऑयली ऑयली खाएंगे। भाई ऑयली ऑयली खाने से ही तो इंसान मोटा ताजा रहता है। चुप करिए आप। जब देखो बस बोलते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। और आज आप वॉकिंग पे भी नहीं गए सुबह सुबह मेरे साथ। अरे वॉकिंग पे अब कौन जाए? सारा दिन काम करके बदन टूट जाता है। सुबह सुबह जरा सोने को मिलता है और तुम चाहती हो कि मैं 6 बजे उठकर दौड़ लगाने जाऊं। और रही बात लाइफ स्टाइल को बदलने की, कल ही 2 नई जींस खरीद के लाया हूँ, थोड़ा सा बदल लूंगा लाइफ स्टाइल। वाह वाह वाह, लाइफ स्टाइल जीन्स से चेंज होती है। लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बहुत से तरीके हैं। बहुत से तरीके? हाँ। भाई कौन से तरीके हैं तुम ही बता दो। देखिए, आप वॉकिंग पे जाइए सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, आप योगा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता ना, आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, 6 बजे कौन उठेगा? जब आप फोन पे बात करते हैं तो थोड़ा आप चल लेते हैं। हाँ भाई, ये मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि दिन में कम से कम मेरे मोबाइल पे 50 फोन कॉल आते हैं। तो भाई उनसे बात करता रहूंगा और चलता रहूंगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो मालिक एक और चीज बताएं। हाँ भाई। आप ऑफिस जाते हो और आपका ऑफिस है ऊपर मंजिल पे। हाँ भाई, मेरा ऑफिस जो है वो 11वीं मंजिल पर है। हाँ है ना। हाँ। आप लिफ्ट से क्यों जाते हो? पैदल पैदल चलते रह करो, पैदल पैदल चलते रह करो, आराम से पहुंच जाओगे। और ये जो पेट निकल रहा है वो अंदर हो जाएगा ऐसे करके। अबे तू मेरे हेल्थ की सलाह दे रहा है या मुझे सजा दे रहा है? सजा का दे रहा हूँ, मैं तो बीबी जी के साथ हूँ। रोज 11 मंजिल पैदल चलकर जाऊंगा ना तो सूख कर कांटा हो जाऊंगा। फिट रहोगे। अबे तू बेकार की बातें मत कर। और तू कम से कम अगर मेरे लिए जाकर पकोड़े नहीं बना सकता तो चाय तो बना ही दे। अरे मैम साहब ने बड़ी अच्छी चीज बनाई है आपके लिए, पूछो जरा। भाई क्या बनाया है? आज मैंने आपके लिए ढोकला बनाया है। ढोकला? हाँ। और भी कुछ बनाया है या खाली ढोकला ही खिलाओगी? अरे साथ में सलाद भी तो है। अच्छा भाई, ढोकला सलाद चलो यही खाने दो। भूख तो लग रही है, बड़ी तेज है। और वैसे भी तुमने पिछली बार अपनी किटी पार्टी में जब ढोकला बनाया था तो बचा हुआ ढोकला मुझे खाने में बड़ा मजा आया था। अब छोड़िए, देखिए हमको अपने खान पान में भी बहुत चेंजेस लाने चाहिए। भाई वो चीज तो मैं समझ रहा हूँ कि खान पान में चेंजेस लाने चाहिए, लेकिन डाइटिशियन तुम हो, तुम ही बता सकती हो भाई क्या बदलाव लाने होंगे, बताओ जरा। मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। अब आप सुनिए। हाँ। बल्कि जब हम खाना खाते हैं ना, हाँ। तो जो हमारी थाली है वो रंग बिरंगी होनी चाहिए। रंग बिरंगी होनी चाहिए। मैम साहब आप हमें पैसे दे दो, हम मार्केट जाते हैं, 5-6 रंग की पेंट की डब्बी लेके आते हैं, सारी थाली रंग से कर देंगे और सारी थाली हो जाएगी रंग बिरंगी। चुप कर रामू, जब देखो मजाक करता रहता है। अबे नालायक, उस रंग पेंट की बात नहीं कर रही है। अबे हरी भरी थाली, रंग बिरंगी थाली से मतलब है कि उसके अंदर थोड़े सफेद चावल हो, थोड़ी पीली दाल हो, लाल लाल गाजर और सुर्ख टमाटर और तो और वो पर्पल कलर की प्याज। भाई ये सारी चीजें जब उसके अंदर मिलेगी तो खाने में भी मजा आएगा और भाई जिंदगी में भी रंग भर जाएगा। और हरी सब्जी मत भूल जाना। अरे हरी सब्जी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना रंग पूरे कहाँ होंगे। अरे मालिक फिर तो फ्रूट भी जोड़ ही दीजिए। हाँ भाई फ्रूट तो जरूरी है, पर यार रामू फ्रूट आजकल बड़े महंगे हो रहे हैं, इसके लिए भी कुछ बता सकती हो क्या? और क्या, अगर फ्रूट महंगे हुए तो क्या हो गया, सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं, क्योंकि सीजनल फ्रूट सस्ते होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। भाई ये बात तो है, सीजनल फ्रूट टेस्टी भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। और भाई मैं तो आज ये भी पढ़ रहा था कि भाई वेजिटेबल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर जो है फाइबर जो है भरपूर मात्रा में होता है, यानी उसके जो रेशे होते हैं अगर हम उन्हें खाते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। देखा, आप मेरे साथ रह के इतना कुछ सीखे। हाँ भाई ये तो है, डाइटिशियन वाइफ से शादी करने का इतना फायदा तो मुझे मिला है। भाई लेकिन मैं तुम्हें एक काम की बात बताना भूल गया। कौन सी बात? अरे रामू तू इधर आ जरा, पति पत्नी के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहता है। भाई आज मैं जब कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था तो मैंने इंटरनेट पे एक कोर्स के बारे में पढ़ा था। कोर्स के बारे में? हाँ, अरे क्या नाम था उस कोर्स का? आइडियल कोर्स। हाँ, यानी इंटरनेशनल डायबिटीज एजुकेशन ई लर्निंग कोर्स। लेकिन इस कोर्स को करके होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा भाई। देखो तुमने 4 साल पढ़ाई की है डाइटिशियन का कोर्स करने में, अब उसके बाद भी अगर ये तुम्हारी पढ़ाई किसी के काम ना आए तो क्या फायदा। भाई ये कोर्स अगर तुम करती हो तो तुम्हें ये पता लगेगा कि भाई डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस बारे में तुम्हें सारी जो है जानकारी इस कोर्स के द्वारा मिलेगी। और हाँ, मैं तो ये भी जानती हूँ कि 90% डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया
अरे भाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये तो हम सबका जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में भाई तुम जानती नहीं हो लेकिन कम से कम 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं। और तो और इन डायबिटीज के शिकार लोगों का इलाज करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ 400। हाँ, लेकिन हमारे देश के अंदर करीब करीब 1.5 लाख डाइटिशियन है जो चाहे तो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं लोगों को डायबिटीज कंट्रोल करवाने में। हाँ, तो अब आप सुनिए कि 90% डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ भाई बताओ। पहला तो है अच्छी लाइफस्टाइल अपना के। अच्छी लाइफस्टाइल अपना के, जैसा कि तुम बता रही थी कि भाई थोड़ा सुबह व्यायाम कर लो, हाँ। है, और तो और भाई अगर बाजार जा रहे हो तो पैदल चले जाओ, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, खाने के बाद थोड़ा टहलने जाओ, है, ऐसी चीजें। हाँ, ऐसे ही। और भाई एक बात बताएं, आप खाना खाने के बाद थाली ऐसे खिसका देते हो, ऐसे सो जाते हो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। बता थाली खुद रख दो, हैं, उसके माज भी तो मन करे तो माज भी दो, चलने लग जाओ। ये देख लो, ये अपना काम भी मुझसे करवाने की सोच रहा है। अबे इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि तेरा काम भी खुद करने लगूंगा। मालिक रोकी क्या? तुझे रोकी की पड़ रही है? रोकी की तरह एक दिन तू भी जाएगा, इसी तरह जबान चलाएगा तो। हाँ, तुम बोलो। उसे मत डांटा करिए, कभी कभार वो सही बातें करता है। बड़ी तारीफें हो रही हैं तेरी। कल से तू बेटा मेरे ऑफिस में चलकर चाय बनाएगा, मैं छोड़ता हूँ तुझे घर में। मेरी बीवी को भड़काता है। हाँ तुम बोलो जी, क्या कह रही थी? तो फिर आप रोज योगा करोगे सुबह सुबह, ठीक है? हाँ, ऐसे करके। अबे ये कौन सी योगा है? योगा ऐसे होती है, हम ऐसे करते हैं। ये मुझे पागल कर देगा। लेकिन रामू ठीक कह रहा है। ठीक है भाई, रामू ठीक कह रहा है, हम गलत है। भाई देख रामू, मैं तुझे बताता हूँ, योगा अलग चीज है और व्यायाम ये जो तू कर रहा है कसरत ये अलग चीज है। लेकिन मैं कल से दोनों ही शुरू कर दूंगा। और एक बात बता भाई, हाँ? तू सुबह दूध लेने कितने बजे जाता है? 6 बजे। तो तू मुझे 5:30 उठा दियो, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पैदल और कल से जरा सुबह सुबह दौड़ लगा कर आऊंगा। तो ठीक है मालिक, हम आपको उठा दे करेंगे, आपका भाई। पानी हम लेके चलेंगे और आपको दौड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो तुम्हारा पहला तो हो गया कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप हेल्दी फूड खा सकते हैं। हेल्दी फूड जैसा कि तुम बता रही थी कि रंग बिरंगी थाली होनी चाहिए, हाँ। और सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, हाँ। और ये जंक फूड वगैरह कम खाने चाहिए, और ऑयली चीजें बिल्कुल कम खानी चाहिए। अच्छा। हाँ भाई, क्योंकि आजकल हम मेहनत तो करते नहीं है लेकिन ऑयली चीज डबाडब खाए जा रहे हैं। और भाई तीसरा क्या था वो भी बता दो। तीसरा है काउंसलिंग। काउंसलिंग, हाँ। यानी समय समय पर हमें इस बारे में चर्चा करता रहना चाहिए कि भाई हम जो है अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। हाँ। हाँ, चलिए भाई ये तो ठीक है भाई। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है हम लोग पहले ही कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, और इस तरह की और बीमारियां अगर लग जाएंगी तो इससे बड़ी और बुरी बात कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये बात तो है। तो आप फिर भी नहीं समझते मेरी बात। मैं आपको रोज समझा समझा के थक जाती हूँ, ज्यादा नमक मत खाइए, ज्यादा चीनी मत खाइए, लेकिन आप मेरी बात ही का मानते हो। तो ठीक है भाई, अब जो है मैं ना ज्यादा नमक खाऊंगा और ना ज्यादा चीनी खाऊंगा। तो तुम्हारी 3 चीज मैंने सुनी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये आइडियल का कोर्स करो, और भाई तुम अपने इस कोर्स को करने के बाद अपने परिवार के लिए भी तुम कुछ बेहतर कर पाओगी, क्योंकि तुम अपने जो है पति को भी डायबिटीज से बचा पाओगी, अपने जो परिवार के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कर पाओगी, और तो और अपनी जो सहेली है उन्हें भी बता पाओगी, उनके बच्चों को बता पाओगी, है? और भाई तुम्हें एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, है कि इस कोर्स को करने से ना तुम्हें नौकरी के भी कई और अवसर मिल जाएंगे। यानी जो सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी है भाई, उसमें भी तुम नौकरी कर सकती हो, जाकर किसी अस्पताल में नौकरी कर सकती हो, और तो और भाई कई ऐसे अवसर और मिलेंगे कि जहां तुम्हारा फ्यूचर निखरता चला जाएगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शादी के बाद तो मैं घर में उलझ के रह गई थी, बच्चों में उलझ गई थी, आप में उलझ गई थी। लेकिन अब मैं सबकी हेल्प करूंगी, मैं ये कोर्स जरूर करूंगी। बिल्कुल, और इस कोर्स को करने के बाद तो तुम्हें और भी कई चीजें पता लगेंगी कि जैसे भाई जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और एक सामान्य पेशेंट जो आदमी होता है उनमें क्या फर्क होता है। अगर हमारे देश में कोई डिजास्टर आ जाए तो आपदा के समय डायबिटीज के पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी श्रीमती जी, हमारे देश के अंदर हो या विदेश के अंदर हो, तो ये खाने पीने की समस्या तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो हमें अपने खान पान को बचपन से ही सुधार के रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बीमारियां हमें लगे ही ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो अब ये बताओ जरा, ढोकला कब खिलाओगी? कल?
नहीं नहीं अभी खिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। तो चलो फिर तुम ढोकले की तैयारी करो। जाओ 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 जाओ। मैम साहब हरी मिर्च भी डाल लेना। ठीक है। ढोकला मेरे लिए लगाया जा रहा है, और वैसे भी इतना अच्छा सवाल जवाब का सेशन चला है मियाँ बीवी में। तू क्या खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था? अरे सवाल जवाब से हमें भी कुछ सवाल आ रहा था मगर हम बोले नहीं। तुझे सवाल आ रहा था? हाँ। अरे तो पूछ ले, बड़ा इंटेलिजेंट रहा हूँ मैं अपने समय का, पूछ ले। अच्छा बता सकते हो? अरे बिल्कुल बता सकता हूँ भाई। मुझे तो शक है आप पे। तुझे क्यों शक है भाई? चलो पूछ तो लेता हूँ। हाँ, पूछ एक ले। बात बताओ, 5 सतरे में से 2 चीकू गए तो कितने केले बचे? अबे क्या पूछ रहा है? कौन सी सदी का सवाल उठा लाया? बोला था ना नहीं बता पाओगे, बता ही नहीं सकते तुम। ऐसा कैसे हो सकता है? तू दोबारा पूछ जरा। देखो 5 सतरे में से 2 चीकू गए, कितने केले बचे? बेटा 5 घोड़े बचे। 5 घोड़े? मालिक आपको तो पता है, सब कुछ बताया आपको। अरे बिल्कुल पता है, और जानता है क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि बेटा कल मैंने रात को आलू गोभी की सब्जी खाई थी, और तू जो है रोज ब्रश करा कर, वरना पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। दफा हो यहाँ से। मालिक ब्रूस इसलिए नहीं करता ना क्योंकि सीएनजी के दाम ना कम हो जाएंगे। अजी सुनते हो? नहीं बहरा हूँ, सुना दो। ये मेरी पत्नी मुझे ऐसे नहीं जीने देगी, लेकिन भाई चलो, जैसी मेरी पत्नी है भगवान करे सबको मिले, सबकी सेहत का ख्याल रहे और हमारे देश का हर इंसान तंदुरुस्त रहे। जितने यहाँ पर मेरे भाई लोग खड़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी डाइटिशियन बीवी से ही शादी करना, फायदे में रहोगे। आज जरूरत है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलने की, अपने खान पान को बदलने की, जिससे कि हमारे देश में हमें जो ये बीमारियां घेर रही हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज की हो, या इसके अलावा कोई और बीमारी, इनसे हम लोग बच सके। तो इसलिए साथियों, आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम अच्छी आदत को अपनाएंगे। आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम अच्छी आदत को अपनाएंगे, हम सबको ये समझाएंगे। आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम खाने के साथ अब खाए सलाद, हम रोज सुबह व्यायाम करें। खाने के साथ अब खाए सलाद, हम रोज सुबह व्यायाम करें। धूम्रपान से सबको परहेज कराएंगे। धूम्रपान से सबको परहेज कराएंगे।